जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आपको शर्म आनी चाहिए। हिंसा नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं और मोदी जी बैठे हैं मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बम्बई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूँ कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। We saw a gross show of the Prime Minister's insensitivity and lack of empathy towards the burning issue of Manipur that has been going on for so long. Yesterday, we heard the Prime Minister's reply to the presidential address, and just as the Prime Minister's reply was about to begin, Honorable Rahul Gandhi ji raised his hand as the leader of opposition. It's the second most important position, constituent position after the leader of the house, which is the Prime Minister. He raised his hand to speak, but he was denied the opportunity. It has never happened that the LOP's mic has been switched off. When the Congress was in power and when the BJP was in opposition, the LOP's mic is always on. Even in the Vidhan Sabhas, the LOP's mics are always on. But first time in the history of this country, the LOP's mic has been switched off. He was denied permission by Honorable Speaker to speak on the issue of Manipur. That in itself is an act of insensitivity and lack of empathy towards Manipur. When that happened, the Prime Minister continued his speech. All of us, we identified with the problems of Manipur. India Alliance has strongly stood by the people of Manipur and the MPs of Manipur who wanted a minute, I would say, because we kept asking the Speaker, sir, we just want a minute. All we wanted is 60 seconds to bring in front of the Prime Minister, who probably either is not aware of the problems of Manipur, he doesn't want to face the people of Manipur, he doesn't want to go to Manipur, and which is why they often deny us the opportunity to present the problems of Manipur in Parliament. There are two MPs from Manipur who were denied the opportunity, who were not given the opportunity to speak. One was given the opportunity, but yesterday, in front of the Prime Minister, because we wanted to draw the Prime Minister's attention. The Prime Minister does not belong to a particular party when he is representing the country. He belongs to the entire nation. The least we expect from him is sensitivity. When so many people have died, when women have been paraded naked in Manipur, the least we expect of you is 60 seconds. Just listen to us for 60 seconds, but they were denied that opportunity, the MPs. Our whip, Honorable Gaurav Gogoi ji, and the MPs, everybody got into the well. We followed them into the well. Entire India opposition leaders, MPs followed them into the well. We were trying to
tell the speaker, just give us 60 seconds. That's all we wanted, but we were denied we were denied the permission. LOP was not given the permission to speak. The Prime Minister refused to speak. Even the Prime Minister didn't even mention Manipur in his speech. हमारे पहले जो सांसद हैं मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी, जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं। और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे। लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकुले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए। और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए, और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई, हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की। मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए। और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद, उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।